السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے. اور دوستو، آج کا کلاس بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہونے والا ہے. آج کے اس کلاس میں ہم NCERT جو ٹیکسٹ بک ہے اس بک سے ہم چیپٹر نمبر 1 جو 10th کلاس میں پڑھائی جاتی ہے نوائے اردو، اس سے ہم چیپٹر نمبر 1 جو راجندر سنگھ بیدی کا ہے وہ افسانہ ہے بھولا، اس بھولا کو آج پڑھیں گے. اور یہ جو آج کا کلاس ہے ان سارے طلباء کے لیے، اس سارے کینڈیڈیٹ کے لیے مہتوپورن ہونے والا ہے جو NCERT کا بک پڑھنا چاہتے ہیں اور 10ویں کلاس میں ہیں. ان تمام کلاس کے لیے اہم ہونے والا ہے، اور خاص طور سے BPSC کی تیاری کر رہے ہیں جو اسٹوڈنٹ، ان کے لیے اہم ہونے والا ہے، کیونکہ BPSC میں NCERT سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. آج بھولا کو ہم پڑھیں گے. بھولا افسانہ جو راجندر سنگھ بیدی کا ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اور اس سے جو سوالات اخذ ہو سکتے ہیں ان سارے بندوؤں کو ہم آپ کے سامنے ایکسپلین کریں گے، اور جو سوالات اس سے اخذ ہو سکتے ہیں اس کو ہم سمجھانے کی پریاس کریں گے. تو چلیے دوستو، آج افسانہ بھولا جو ہے، افسانہ بھولا کی بھولی بھالی باتیں، اس کی ذہانت اور شرارت پر اچانک اس کا غائب ہو جانا. کیا ہے کہ افسانہ بھولا میں کیا کردار ہے؟ اس کی ماں ہے ایک مایا. اس کا نام کیا ہے؟ بھولا کی ماں کا نام ہے مایا. کیا ہے دوستو؟ اس بھولا افسانہ میں بھولا کی ماں کا نام ہے مایا. کیا ہے دوستو؟ مایا اس کی ماں کا نام ہے، جو بیوہ عورت ہے. کیا ہے دوستو؟ جو بیوہ عورت ہے. اور بھولا جو مرکزی کردار کیا ہے دوستو؟ بھولا مرکزی کردار ہے. بھولا اس کو یہ تو افسانہ کا نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بھولا اس میں مرکزی کردار ہے. اس کی ماں جو ہے بیوہ ہوتی ہے. اس کی ایک چھوٹی بہن ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے ننھی. کیا ہوتا ہے دوستو؟ ننھی. اور اس میں ایک مایا کے سسر ہیں جو بھولا کے دادا ہوں گے. کون ہوں گے دوستو؟ دادا ہیں. چلیے، تو آج کا کلاس میں ہم مرکزی بہت ہی افسانہ بہت اہم ہے، بہت اچھا افسانہ ہے. افسانہ بھولا میں بھولا کی بھولی بھالی باتیں. کیا ہے دوستو؟ اس میں یہ جو بھولا ہے نا، ان کی بھولی بھالی باتیں بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور اس کی ذہانت، کیا ہے دوستو؟ اس کی ذہانت بھی اس کے اندر دکھایا گیا ہے. اس کی کہیں کسی موقع پہ یہ جو بچہ بھولا ہے اس کی شرارت کو بھی مصنف نے اجاگر کیا ہے. اور پھر اچانک سے اس کہانی کے اندر سے بھولا کا غائب ہو جانا دلچسپ اور پر اثر انداز میں بیان کیا گیا ہے. بھولا کے کردار کے ذریعے بچے کی نفسیات بڑی خوبی کے ساتھ، بچے کی نفسیات، کیا دوستو؟ بچے کی نفسیات کو بالکل خوبی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. تو یہ سب باتیں ہم پڑھیں گے. یہ سب باتوں کو ہم آج بھولا جیسے افسانہ میں پڑھیں گے. لیکن اس بھولا افسانہ کو پڑھنے سے پہلے بھولا افسانہ کے تخلیق کار کون ہے، اس کے مصنف کون ہے، اس کو ہم جانیں گے. تو بھولا کو لکھنے والے کون ہیں؟ یہ راجندر سنگھ بیدی کا یہ مشہور افسانہ بھولا ہے. بہت بڑھیا افسانہ ہے، پڑھنے میں اچھا لگتا ہے. واقعی جو خصوصیت ہونی چاہیے ایک افسانے کی، وہ خصوصیت ہے اس بھولا کے اندر. افسانہ کیا ہے دوستو؟ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے، اور اس میں وحدت تأثر کا قائم رہنا ضروری ہوتا ہے. اور ایک کامیاب افسانہ وہ ہوتا ہے جس کو پڑھتے ہوئے قاری کا ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے، اور قاری جیسے جیسے پڑھتا چلا جائے اس کی دلچسپی اور بڑھتی چلی جائے، اور ایک ہی نشست میں وہ کہانی کو پڑھ ڈالے. تو چلیے، راجندر سنگھ بیدی کہاں پیدا ہوئے دوستو؟ تو ان کی پیدائش ہوئی تھی سیالکوٹ لاہور میں. کہاں ہوئی تھی دوستو؟ سیالکوٹ لاہور میں. سیالکوٹ لاہور کے اندر راجندر سنگھ بیدی کی پیدا ہوتے ہیں. کب ہوتے ہیں؟ 1915 عیسوی کو. جو لوگ BPSC کی تیاری کر رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ 1915 میں ایک مشہور ادیبہ جو افسانہ نگار ہے، ناول نگار ہے، ان کی پیدائش ہوئی تھی. وہ ہے عصمت چغتائی. ان کو بھی آپ یاد رکھیں گے، اسی سن میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، عصمت چغتائی کی. اس کو آپ یاد رکھیں گے. چلیے، اور ان کی پیدائش جو ہوئی سیالکوٹ لاہور میں، اور ان کی وفات کب ہوئی؟ تو وفات ہوئی ہے 1984 عیسوی کو ممبئی کے اندر. کہاں ہوئی دوستو؟ 1984 عیسوی کو ممبئی کے اندر ان کی وفات ہو جاتی ہے. چلیے، آپ نے ان کے حالات زندگی کے مختصر سے حالات کو پڑھا ہے، اور آگے چلتے ہیں.
कि राजेंद्र सिंह बेदी पैदाइश होने के बाद यानी 1915 से लेकर 1984 तक इन्होंने क्या खिदमत अंजाम दी है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, तालिब इल्मी के ज़माने में अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी नज़में, कहानियाँ लिखने लगे थे दोस्तों। देखिए 1915 से लेकर 1932 के अरसे में कुल तकरीबन 17 साल होते हैं। 17 साल की उम्र में इन्होंने अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखने लगे थे। एक बात और याद रखेंगे कि 1932 ईस्वी में जो उर्दू, पंजाबी में नज़में, कहानियाँ लिखने लगे थे वो राजेंद्र सिंह बेदी अपने नाम से नहीं, उस वक्त मोहसिन लाहौरी के नाम से, किस नाम से दोस्तों? मोहसिन लाहौरी के नाम से, मोहसिन लाहौरी के नाम से एक कहानियाँ लिखा करते थे। चलिए आगे चलते हैं। लिखा कुछ मुद्दत बाद पोस्ट ऑफिस में, क्या है दोस्तों? कुछ मुद्दत बाद पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हो गए। 1943 में डाक खाने की मुलाजिमत से मुस्तफ़ी होकर मरकज़ी हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में भी बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए, लेकिन एक ही साल में वहाँ इस्तीफ़ा देकर मुंबई चले गए। फिल्मों के लिए लिखने लगे। दोस्तों इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है और सबसे मशहूर फिल्म इसका दस्तक है। क्या है दोस्तों? इसको याद रखेंगे। सबसे मशहूर फिल्म इसका दस्तक है, इसको याद रखेंगे जो आगे आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। और उनके 6 अफसानवी मजमूए अब तक शाये हो चुके हैं। 6 अफसानवी मजमूआ। दाना व दाम, क्या है दोस्तों? दाना व दाम 1965 ईस्वी लिखा हुआ है, लेकिन सही इसका दोस्तों है 1965 नहीं बल्कि 1939 ईस्वी है दोस्तों। क्या है? 1939 ईस्वी। इस दोनों को याद रखिएगा, 1965 और 1939, इन दोनों को याद रखिएगा। ये एग्जाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1965 में दाना दाम और 1939 में दाना दाम, लेकिन मशहूर है कि 1939 में दाना दाम लिखे थे। उसके बाद ग्रहण 1942 में, आज़ादी से पहले शाये हो चुके थे 1942 ईस्वी में। उसके बाद है दोस्तों कोख जली। क्या है दोस्तों? कोख जली 1949 ईस्वी में इसकी इशाअत हुई थी। उसके बाद अपने दुख मुझे दे दो। क्या है दोस्तों? अपने दुख मुझे दे दो 1965 में अपने दुख मुझे दे दो यह है। और 19 दाना और दाम कब है दोस्तों? दाना और दाम की जो है 1939 होना चाहिए। चलिए हाथ हमारे कलम हुए, तीसरा अफसानवी मजमुआ कोख जली, और चौथा हाथ हमारे कलम हुए, और पांचवा है मुक्ति बोध। क्या है दोस्तों? मुक्ति बोध। दाना और दाम, ग्रहण, कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए और मुक्ति बोध, कुल इनके 6 अफसाने मजमूए हैं। तो इसको याद रखिएगा। सन्ने इशात भी याद रखिएगा। हाथ हमारे कलम हुए 1974 ईस्वी में इनकी इशात हुई, और मुक्ति बोध 1982 ईस्वी में आज़ादी के बाद मंजर आम पर आए। और 2 अफसानी मजमूआ इनके जो है आज़ादी से पहले इशात हुई थी, ग्रहण और दाना व दाम। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखेंगे आप। चलिए, और इनकी 6 अफसानी मजमूआ दाना दाम, ग्रहण, कोख जली और हाथ हमारे कलम हुए और मुक्ति बोध, कुल इनके 6 अफसानी मजमूए हैं। इनको आप याद रखेंगे, और इनको ज़माना के एतबार से तरतीब याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बतलाता हूँ, उसको याद रखिएगा। दा गर, दागर को अपहामुख। दोस्तों क्या याद रखिएगा? दागर को अपहामुख, दागर को अपहामुख। इस जुमले को आप याद रखिएगा तो आपको राजेंद्र सिंह बेदी के सारे अफसानवी मजमूए याद हो जाएंगे दोस्तों। इनके सारे अफसानवी मजमूए क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। दागर को अपहामुख, दागर को अपहामुख। दा से अगर दा को देखेंगे आप तो दा को देखते ही आप समझ जाएंगे दा मतलब दाना व दाम। क्या है दोस्तों? दा मतलब दाना व दाम। गर मतलब ग्रहण। क्या है दोस्तों? गर के मतलब ग्रहण। और कोख जली को याद रखेंगे। को से को फॉर कोख जली। अप मतलब अपने हाथ मुझे दे, अपने दुख मुझे दे दो। अप मतलब अपने दुख मुझे दे दो। और हा मतलब हाथ हमारे कलम हुए, हा मतलब हाथ हमारे कलम हुए। मुख मतलब मुक्ति बोध। तो दागर को अपहामुख याद रखने से उनके सारे अफसाने मजमूए याद रखेंगे। उम्मीद कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। देखिए क्लास अगर अच्छा लगे तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, वीडियो क्लास को लाइक कर देंगे, ताकि अगर बेल आइकन को आप दबा देते हैं तो मेरे जो भी क्लास के ताल्लुक से हम आपको अगला क्लास लेंगे फिर डालेंगे यूट्यूब पर, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा बर वक्त। चलिए, तो
आप उनके अफसानवी मजमूआ को याद रखेंगे, उसके लिए जो ट्रिक बताएंगे उसको याद हो गया होगा। दागर को अफहामुक। चलिए अब ड्रामों के दो मजमूए उनकी इशाअत हुई है। एक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, एक है बेजान। क्या है दोस्तों, एक है बेजान। क्या है दोस्तों, एक है बेजान चीज़ें। क्या है, एक है ड्रामा के दो मजमुओं में से पहला है बेजान चीज़ें। क्या है दोस्तों, बेजान चीज़ें 1943 ईस्वी में शायद हुई थी। दूसरा है सात खेल। क्या है दोस्तों, राजेंद्र सिंह बेदी को हम पढ़ रहे हैं तो 1946 ईस्वी में सात खेल की इशाअत हुई थी। दो ड्रामों को याद रखिएगा, एनसीईआरटी में बहुत ही अहम ये टॉपिक है। राजेंद्र सिंह बेदी का नावेल्ट जो है एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी 1960 ईस्वी में इसकी इशाअत हुई थी रिसाला नुकूश में 2 किस्तों में। लेकिन उनको किताबी सूरत में शाये जो हुई थी, दूसरी मरतबा इशाअत हुई थी, वो 1962 ईस्वी को याद रखिएगा। और पहली मरतबा जो इशाअत हुई थी रिसाला नुकूश के अंदर, तो वो 1960 में दोस्तों। कब हुई थी, 1960 में, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई हैं। क्या है दोस्तों, राजेंद्र सिंह बेदी कुछ फिल्में भी बनाए हैं जिनमें दस्तक खासी मशहूर है। क्या है दोस्तों, दस्तक जो है अच्छी खासी मशहूर है, दस्तक। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब इनका क्या है, मुकालमा है। देवदास, मधुमती, अनुराधा बेदी के मुकालमे बहुत मशहूर हुए। कौन कौन दोस्तों, दस्तक है, मिर्ज़ा गालिब है, देवदास है, मधुमती है, उसके बाद अनुराधा है। चलिए बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। वो हर चीज़ को गहरी नज़र से देखते हैं। बेदी अपने अफसानों में नई तशबीहें, नई इस्तिआरे और किनाए वज़ा किए हैं। चलिए अब हम राजेंद्र सिंह बेदी को हमने पढ़ लिया, उन्हीं का भोला एक अफसाना है। चलिए भोला को याद रखिएगा, लेकिन उनका एक सबसे पहला अफसाना जो है महारानी का तोहफा को भी याद रखिएगा दोस्तों। महारानी का तोहफा एग्जाम के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महारानी का तोहफा इनका पहला अफसाना है। चलिए हम एनसीईआरटी को लेकर के आज पढ़े हैं, तो उनमें राजेंद्र सिंह बेदी के हालात ज़िंदगी, उनकी खिदमात को पढ़ चुके हैं। उनकी खिदमात में दाना दाम न ग्रहण और दागर को अफहामुक याद रखेंगे तो दास फोर दाना और दाम, और गर मतलब ग्रहण, दागर को मतलब कोख जली, अप मतलब दागर को अफहामुक, अप मतलब अपने दुख मुझे दे दो, हा मतलब हाथ हमारे कलम हुए, मुक मतलब मुक्ति बोध। चलिए इनको आपने पढ़ा। उम्मीद है कि इस ट्रिक से आप राजेंद्र सिंह बेदी के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वो आपसे बच करके नहीं जाएगा, वहीं पे उसको आप हल कर देंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना भोला है दोस्तों, बहुत ही भोला भाला अफसाना है। भोला जो है इस भोला में एक बच्चा रहता है जिसका नाम रहता है भोला। उसकी माँ का नाम रहता है माया। क्या है दोस्तों, माया। उसकी एक बहन होती है जिसका नाम रहता है नन्ही। क्या है दोस्तों, नन्ही। उसके दादा है, उसको भोला जो है बाबा जी के नाम से पुकारते हैं, बाबा जी। भोला का एक मामू भी इसमें एक अहम किरदार अदा करता है। उसके मामू जो है भोला, माया के यहाँ मामू जो जब हर साल राखी का जो त्यौहार है उस त्यौहार में भोला के यहाँ उसका मामू आया करते थे। इसी वजह से माया जो है, भोला की अम्मी, वो अपने भाई के लिए दूध का मक्खन तैयार करके, घी तैयार करती है, मक्खन बनाती है दूध से, प्योर दूध से, ताकि मैं अपने भाई का उस मक्खन से इस्तेकबाल करूं। और ये उम्मीद रहती है कि भाई जब राखी बांधने के लिए आएगा तो मेरे लिए कपड़ा, मेरे बच्चों के लिए कपड़ा, कुछ पैसे, तोहफा तोहफ़ लेकर के आएगा। तो चुनांचा उसके मामा हर साल आया करते थे। अब भोला जो है उसकी भोली भाली बातें इतनी अच्छी अंदाज में पेश की गई है इस कहानी के अंदर। अगर इस कहानी को आप पूरा पढ़ेंगे तो अगर मैं इबारत खानी करूं तो वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इस कहानी का एक निचोड़ खुलासा आपके सामने बतला दूं, और ताकि आपको वो किरदार भी याद हो जाए और इस कहानी का जो मतलब है वो आप जान सकें। तो भोला के दादा कहते हैं कि मामू जो है वो तुम्हारे कौन होंगे, तो कहता है मामू जान। और तुम्हारे अम्मी के कौन होंगे, तो वो भी कहता है मामू जान होंगे। क्यों? क्योंकि वो बच्चा होता है, छोटा होता है, उसको मामू पता चलता है कि मामू जान है तो सबको मामू जान होंगे। नन्ही कौन होंगे, तुम्हारे भाई हैं।
नन्ही के भाई भोला है। चलिए, तो भोला जो है इस कहानी में मरकजी किरदार है। उसकी माँ जो है बेवा औरत हो जाती है, बेवा हो जाती है। उसके दादा जो है बहुत ही प्यार से उसको रखते हैं, और दादा का वो माया जो है उस अपने ससुर का बहुत ख्याल करती है। टाइम से खाना देना, हर एतबार से उसकी खिदमत करती है। कौन? माया दोस्तों। तो इस माया को आज हम पढ़ेंगे कि माया इसमें उसकी माँ होती है, तो अपने भाई का इंतज़ार करती रहती है। रात में एक मर्तबा इंतज़ार करती रहती है, बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं, और किस्सा कहानियाँ दादा से हर रात में वो बच्चा सुनता रहता है। लेकिन जब राखी का टाइम आता है तो उस समय बच्चा जो है खूब इंतज़ार करता रहता है, लेकिन उसके मामा को आने में थोड़ी सी ताख़ीर होती है, और वो मामा लेट से आते हैं और बच्चा सो जाता है। कल भी नहीं आया, कल देखता है कि अभी नहीं आया। दादा को कहता है, दादा आप किस्सा हमें कहानियाँ सुनाइए। तो दादा थका रहता है दिन भर, वो एक रात नहीं सुना पाता है बच्चा को। तो बच्चा वो जो है ना मायूस होकर कहता है, बाबू कल हम दिन में सुनाएंगे। जब कल होता है तो फिर बच्चा कहता है कि हमें कहानी सुनाइए। तो दादा फिर कहीं जाना होता है उसको अमीन के साथ, तो इसलिए वो सुनाने के मिजाज में नहीं रहता है। अगर सुनाएंगे तो काम उधर का ढेर नहीं हो पाएगा। इस वजह से वो टालने की कोशिश करता है कि बाबू बेटा अगर दिन में कहानी कहेंगे ना तो मुसाफिर जो है रास्ता भूल जाता है। मुसाफिर दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं, इसलिए नहीं सुनाना चाहिए। इस बच्चा को ये बात कि दिन में कहानी सुनाने से रास्ता भटक जाता है, इसलिए वो बच्चा क्या करता है कि सोचता है कि बाबू नहीं, मामा हमारे अभी तक नहीं आए, देर रात हो गई है, लगता है कि भटक गया होगा रास्ता। चुनांचे वो लालटेन ले करके, एक रोशनी ले करके अपने मामू को रास्ता बताने के लिए निकल जाते हैं। और वो ज़माना मेला का होता है, और उस समय में बच्चों की चोरी हो जाती थी। बच्चा उसकी माँ जो देखती है कि बच्चा को लेके सोए हुए थे लेकिन बच्चा नहीं है, और बच्चा भोला जो है वो सीधे चल देता है मामू को तलाशने के लिए रोशनी लेकर के। रास्ता भटक गया होगा, क्योंकि कहानी सुनाने से रास्ता भटक जाता है मुसाफिर, तो हो सकता है मेरे मामू भटक गए हों। चुनांचा वो बच्चा जो है ले करके लालटेन सीधे चल देता है मामू के पास। आप इसको तस्वीर में भी दिखा दे रहे हैं अभी आपको, कि इस तस्वीर में देख सकते हैं उसका मामू लेकर लालटेन लिए हुआ है बच्चा हाथ में, और मामू उसका आ रहा है। मामू आता है, देखता है भांजा यहाँ है, लेकर के आते हैं। और माँ इधर परेशान होती है कि बच्चा कहीं गुम हो गया, हो सकता है मेला का ज़माना है, कोई चुरा करके ले गया होगा मेरे बच्चे को। बहुत रोने लगती है उसकी माँ। बाद में मामू के साथ देखता है आते हुए, बहुत खुशी होती है। इस अफसाना में देखिए दोस्तों, भोला की भोली बाली बातें, उसकी ज़हानत और शरारत, अचानक उसका गायब हो जाना दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। भोला के किरदार के ज़रिए बच्चे की नफ्सियात को बड़ी खूबी से पेश की गई है। बेवा औरत को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है दोस्तों, जो इस कहानी में दिखाया गया है। उसका समाज में कोई मकाम नहीं, समाज में कोई मकाम नहीं। दुनिया हकारत की नज़र से देखता है, और न वो अच्छा खा सकती है, न पहन सकती है अच्छा खाना, और पहनना अच्छा कपड़ा न पहन सकती है। एक दादा के ज़रिए समाज के इस रवैये की सख्त मुखालिफत की गई है दोस्तों। तो इसे आप समझ सकते हैं कि ये कहानी का खुलासा आपको मैंने बतलाया। अब कुछ मानी, लफ्ज़ और मानी है जिसे हम देखेंगे दोस्तों। कूज़ा किसे कहते हैं? कूज़ा कहते हैं एक मिट्टी का छोटा सा प्याला, कुल्हड़ जिसे कहते हैं, सफ़ेदी को कहते हैं। खुश इलानी अच्छी आवाज़, सबत करना यानी निशान बनाना, कदम बिठाना। रूह फरसा मतलब रूह को तकलीफ देने वाला, रूह फरसा मतलब रूह को तकलीफ देने वाला। ताबे क्या है दोस्त? ताबे तिहत पाबंद, दूब हरी नरम छोटी घास, मुखम्मसा यानी उलझन झंझट, अधियाय यानी बाब जिसे हम बोलते हैं, और स्तुतर वो श्लोक जिसमें ईश्वर की तारीफ की गई हो, इसमें ईश्वर की तारीफ की गई हो। यास मतलब ना उम्मीदी, तवक्कुफ मतलब वक्फा। क्या है दोस्तों? खानका मतलब किसी पीर, बुजुर्ग या सूफी की रहने और इबादत करने की जगह। पटवारी ज़मीन नापने वाला, पटवारी मतलब ज़मीन नापने वाला सरकारी मुलाजिम। जरीब नापने वाली जंजीर, पैमाना वो जंजीर जिससे ज़मीन की पैमाइश होती है। चलिए आगे है पायती। पायती कब है दोस्तों? ये पायती है पलंग या चारपाई का वो हिस्सा जिधर पैर किए जाते हैं। तवाज़ो खातिर मदारात, मबनी यानी मुनहसिर, ज़ेर लब यानी होठों में आहिस्ता आहिस्ता, नमनाक यानी भीगा हुआ, इस्तराहत आराम, शाना कंधा, शाना किसे कंधे कहते हैं? कंधा को। कैद बा मुशक्क़त कहते हैं कैद की वो सज़ा जिसमें मेहनत भी शामिल हो। निजात यानी रिहाई, आज़ादी, छुटकारा। दहलीज यानी चौखट,
अगन बूट भाप से चलने वाली कश्ती, सुहागवती सुहागन जिसका शौहर जिंदा हो सुहागवती कहते हैं। नाम रोशन करना मुहावरा मतलब शोहरत होना, मशहूर होना। मुतफक्किराना गौर फिक्र के अंदाज। फरते मुसर्रत खुशी की ज़्यादती। रिक्कत यानी रोने की कैफियत, रूहानसा हुआ। चलिए, गलबा मतलब फतह कामयाबी बरतरी। अख्तर शुमारी सितारे गिनना। शिक होना यानी फटना टुकड़े टुकड़े होना। मन्नत मानना यानी नज़र मानना। मुराद पूरी होने पर इबादत करने या सदका करने की नीयत करना। पथराई आँखें बेहिस व हरकत या बेहिस व हरकत ठहरी हुई आँख। खाना खराब जिसका घर बर्बाद हो जाए। शशदर हक्का बक्का रह जाना। चलिए दोस्तों, इस कहानी को हमने पढ़ा। इस कहानी में भोला गीतें सुना करता था, उसकी माँ स्तुतर पढ़ा करती थी, और उस स्तुतर में मतलब रब की तारीफ होती है, जिस ईश्वर को लोग मानते हैं उसकी तारीफ करते रहते हैं। उसी स्तुतर में एक शेर आता है कि हरि हर हरि हर हरि हर हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि है। दोस्तों देखिए, ये शेर है, हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों इतनी देर करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी। इसे आप याद रखेंगे। और भोला कहानी में उसकी माया, उसकी नन्ही बहन, उसके दादा, उसके मामू और उसकी माँ माया को दिखाया गया है। इस किरदार को आप याद रखेंगे, और इस चैप्टर से जो सवालात अखज़ हो सकते हैं, जैसे उनकी हयात और खिदमात के मुतालिक, इन्हें आप याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। चलिए, जब तक के लिए चलते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा।